members, we welcome you in this virtual CPR meeting. We have got another program on 25th of July. There will be two speakers on GST. One will be Navya Malhotra and the other speaker will be Rajendra Arora ji. Rajendra Arora ji will be discussing on 3 years of GST hits and misses, and Navya Malhotra ji will be discussing what to look for while finalizing accounts and balance sheets in GST. So while you are finalizing your accounts or GST annual return, so what are the points you should look for particularly? So these two speakers will be there with us on 25th of July. Okay. From 4 p.m. onwards. That is 3 hours meeting. 4 to 5:30 is one session and 5:30 to 7 o'clock is another session. First session will be taken by CA Rajendra Arora ji and second session will be taken by Navya Malhotra ji. So with this, over to Sanjay Agarwal ji, who is already amongst us. I would request Bhardwaj ji to please introduce the speaker. I welcome our past Central Council member Sanjay Agarwal ji to today's seminar. He will deliberate on the topic ITR forms, new ITR forms. A brief introduction of our speaker, Mr. Sanjay Agarwal, is in practice since 1986 as Ms. Agarwal, Sanjay and Associates. It is a partnership firm. Hello. Kindly mute yourself. Hello. Sanjay ji, am I audible? बीच बीच में आवाज टूट रही है, कोई बात नहीं. नहीं, there is some background sound कुछ आ रही है, जैसे किसी की बातचीत सुनाई दे रही हो. Yes. Mr. Sanjay Kumar Agarwal is a Central Council member of ICI from 2010 to 2019 for 3 terms. Consequent to the election to the Central Council for the first time in 2010 and re-election in 2013 and 16, he has an opportunity of serving the various standing and non-standing and other committees of the Central Council. He was chairman of the Research Committee of Taxation Audit Quality Review Board 2018-19, also chaired Corporate Laws and Corporate Governance Committee and Direct Taxes Committee in 2017-18, Legal Coordination Committee and Digital Transformation and Process Re-Engineering Committee 2016-17, Public Relation Committee 2013-14 and Direct Tax Committee 2011-12 and 12-13. He has been Vice Chairman of the Committee of Economics, Commercial Laws and Economic Advisory 2018-19, also chaired Vice Chairman of Direct Taxes Committee 2015-16, Committee of Public Finance and Government Accounting 2015-16, Committee of Cooperatives and NPOs 2015-16, Expert Advisory Committee 14-15, Committee on Information and Technology 2013-14 and Audit Committee 2012-13. He has been a member of the Regional Council member of ICI from 2004 to 2007, Chairman during the year 2004-5, Executive Member 5-6 and Treasurer during the 2006-7. I request Sanjay Agarwal ji to kindly start his deliberation on new ITR forms. Welcome, sir. Thank you, Bhardwaj ji. I am thankful to Keshav Nagar, Trinagar Keshapuram Study Circle. I think I have a very long association with this study circle, and I'm thankful to R.K. Gupta ji and the way he is doing the work. And today he was great enough to provide me the entire material on the IBC for the purpose of members, and we have published it today through our channel. And the way he is doing all these things selflessly, I think it's a great contribution by seniors towards the profession. I'll be
beside this new changes in ITR form, I'll be taking for the purpose of just members the new 26AS form also, because that is also connected with this particular you can say the topic. There are member will find that things which are there in 26AS are also important, and they will be used for their purposes in the future course of profession. So before I'll start with the my presentation, I'll take the screen. I think screen I have to be given again. Can you make me again presenter? Sanjay Agarwal ji, stop make presenter. My voice is there? Yes sir, yes sir, you are audible. Okay, aa gayi. Yes, it has come. My screen is there? Yes sir, it is present. Yes, sir, Your screen is desktop is visible. visible. Okay, okay, just a minute. कौन कर रहा है? हाँ. Just a minute. उसको 1 लाख रुपए कम कर दो. साइड 1 लाख रुपए कम करता हूँ साइड. 3 चला इसको 2 कर दीजिए. 3 कर दीजिए. Yes sir. Actually, my presentation is on the right side. Or screen. My screen is there? Yes sir, it is visible. Changes in ITR forms for the assessment year 1920. Yes. और change भी हो रही है? हाँ, change हो रही है sir. Okay. चलो. Thank you very much. It took half a minute to adjust my screen. Now I am not visible to you, and you are also not. I may be visible to you, but you are not visible to me, because most of the part of my screen is only on my PPT. So if you have any question, you can ask. The administrator will see to it that he will stop me, and I will give the answer. And at one place I will reduce my presentation, and I will try to see this that the questions are handled at that place. There are the two points where the questions are likely to come. Lot of questions are likely to come. One is the 7th proviso of 139, where the new assessee, those who are not taxable income, having income, but still they have to file the return. And the second, in respect of our profession, that is the tax audit report. So these are the two places where I would like to have the most of the question answer. मैं यहाँ पे एक स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ चेंजेस ले रहा हूँ पिछले साल से और इस साल में. ITR कैसे फाइल होती है या ITR में बाकी क्या कॉलम है, उसके ऊपर मेरा ये नहीं है, चेंजेस पे है. With this presumption that earlier year we have filed the return. Our still, if you have some question in respect of filing of any item where it has to go, then I will take later on. But initially I would like to say that it is fundamentally on the changes in the ITR. दूसरी चीज, कुछ एक समय इसमें मेरा ब्रशअप के लिए मैं यूज करूंगा,
और कोशिश करूंगा कि क्योंकि आज शायद मेरा 11वां या 12वां डेलिब्रेशन है, बट प्लीज गो थ्रू विद द प्रेजेंटेशन and also see to this that if it requires any changes please let me know, because अभी hand on लोगों ने रिटर्न फाइल करनी शुरू नहीं करी है. Next point, that there are only two forms which have been made schema, which is operational, form number 1 and 4. Form number 2 schema has come, but filing of return has not been yet you can say on by the software provider. However, it is more or less ready. So the other schema, only the PDF form have been relieved, not the schema, form number 1 and 4. So this is the little bit background, and presently I am taking you to some of the fundamentals, and then we'll move towards the each and every changes which are. Next, what we have done, that we have tried to consolidate the form where the common changes are there. For example, there are 10 changes which are there in form number 2, 4, 5, 6. So I have brought them together. If there are one change in all the form, I have brought 1 to 7 at one place, so that any change is not repeated and any change is not left. I have tried to cover it. Now let us see that all of those who are there, they how they take it. And what I will say here, that the query must be addressed. Query must be addressed of the member. कोई आवाज आ रही है पीछे से? Hello. Some of the member are, I think, not mute. 99. Hello. Some of the member are not mute. Just a minute. म्यूट में कनेक्टेड टू ऑडियो. मैं देखता हूं सर. आई एम डूइंग इट, प्लीज. Okay. So to begin with, I'm saying that what are the returns which are to be filed by whom? Those who are salary income, they can file in all the form, but if they are resident only, then they can file in 1 to 4. But if any of them is a not ordinary resident or non-resident, that form number 1 and 4 are not applicable to them. If suppose one is having a salary but is a director in a company, then form number 1 and 4 are not applicable. Similarly, if he is a partner, then form number 1, 2 and 4 is not applicable. Form number 3 is only the form which is there. So similarly, if you have only one house, then you can file in ITR 1 to 4. But if you have more than one house, then you cannot file in ITR 1. Initially, there was a confusion that if I am a joint property holder, then I cannot use file form number 1. But it has been clarified later on that form number 1 can be filed by a joint owner, but only one house property. If I am a joint owner in more than one house property, then I cannot use form number 1 and 4. Similarly, income from business profession, form number 1 is not applicable. Presumptive income is applicable in form number 4. तो ये एक छोटा सा मैंने बनाया हुआ है, इस पे मैं टाइम नहीं लूंगा ज्यादा, and I will try to skip this. This I will I have given in my presentation. Now, form number 1 and 4 cannot be used if there is an agriculture income which is exceeding 5,000. And if the total income exceeds 50 lakh rupees, then it cannot be used. If there is a brought forward loss or carry forward in any head of income, then 1 and 4 cannot be used. Similarly, in the case of the
foreign asset also it cannot be used, and as such all these are there. Now there are few category of the SSC जो लोग इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है. पेपर रिटर्न आज की डेट में वेरी सीनियर सिटीजन्स कैन फाइल irrespective of the income, and those who are not very senior citizens only having up to 5 lakh rupees of income can file their return in paper form. So this is the which DSC, e-filing, EVC, this also I have given. Now this was the just background to all those people, those who are going to file for the first time, because in the screen I was seeing that some of the new members are also there. Now, as I said that now I will take all the 7 forms where the changes are there. So in the sorry, actually ये गलत खुल गई है. Sorry, I will change it. Sorry, just a minute. Oh, Show देखना 20 तो पिछली खुल गई है. देख ये खुल गई, मिल गई. हेलो, हाँ, just a minute. आ गई स्क्रीन? हाँ जी, आ गई. Just now changes which are there in 1 to 6 I am taking. As we all know that there is a extension of making the investment. There is a extension of completing in the case of the 10AA. There is a extension in the deposit or investment in the cases of the capital gain. So for the first time it is happening that because of the COVID, the changes which have been made in the return are in respect of the payment which are falling beyond the financial year. इसका मतलब 31/3/2020 के बाद जो इन्वेस्टमेंट या जो हमने एक्सपेंडिचर किया है जो एलिजिबल है वो उसको हम रिटर्न के अंदर क्लेम कर सकते हैं. उसके लिए इन्होंने एक शेड्यूल DI इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया है. शेड्यूल DI के 3 पार्ट्स हैं. पार्ट A जो कि चैप्टर 6A से रिलेटेड है, पार्ट B जो है सेक्शन 10AA से रिलेटेड है, और पार्ट C सेक्शन 54 से 54 GB से रिलेटेड है. नाउ आई विल टेक यू टू पार्ट DI, शेड्यूल DI.
यहाँ पे मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि जो 31 मार्च को ऑर्डिनेंस आया था उसमें वो टाइम एक्सटेंड हुआ था 30 जून तक, लेकिन 24 जून को एक नोटिफिकेशन से वो 30 जून वाला टाइम 31 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया गया। लेकिन जो फॉर्म आज की डेट में अवेलेबल है साइट पे, उसमें वो अभी 30 जून ही है। तो या तो आप अभी वेट करें क्योंकि रिटर्न का टाइम 30 नवंबर है, और अगर आपके एसएससी ने 30 जून के बाद भी कोई इन्वेस्टमेंट करी है और वो उसको फाइनेंशियल ईयर 1920 रेलेवेंट टू असेसमेंट ईयर 2021 में क्लेम करना चाहता है तो उसको वेट करना चाहिए नए फॉर्म के लिए। यहाँ पे मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि जो लोग हम अपनी रिटर्न प्रिपेयर करते हैं कि भी हम इनको प्रिपेयर करके रखते जाते हैं और बाद में हम एक साथ फाइल कर देंगे, मेरी उनको रिक्वेस्ट है कि जितनी रिटर्न इनकी प्रिपेयर हो जाएं वो उनको फाइल करते जाएं, क्योंकि ये 30 जून वाला स्कीमा चेंज हुआ, ऐसा ना हो कि हमारा गुड वर्क जो है रीवैलिडेट करना पड़ जाए दोबारा। तो अब मैं आपको एक्चुअल रिटर्न पे लेके जा रहा हूं जहां पे वो शेड्यूल डी आई है। Schedule DI, as you must be seeing on the screen, is having a gray portion and a white portion. The white portion is as on say date is saying 30 June, but this is extended up to 31st July. ये चैप्टर 6A में इतने सेक्शन में आप डिडक्शन ले सकते हैं फाइनेंशियल ईयर के बाद की भी 31 जुलाई तक, लेकिन आपको जो टोटल ओवरऑल डिडक्शन है उसमें कोई इंक्रीज नहीं हुआ है, वो उतना ही थ्रेशोल्ड लिमिट है। 1.5 लाख है तो 1.5 लाख है, 50,000 है तो 50,000 है, बाकी जितनी लिमिट है वो सारी उतनी है। तो टोटल डिडक्शन आपको जितनी क्लेम करनी है वो यहाँ पे लेनी है, और उसमें से जितनी अगर पेमेंट कोई आपने 31 मार्च के बाद की है तो वो आपको व्हाइट पोर्शन में लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैंने LIC एटसेट्रा की पेमेंट 1 लाख की है, उसमें से 30,000 मैंने 1 अप्रैल के बाद की है, तो मेरे को 1 लाख यहाँ लिखना है और 30,000 यहाँ लिखने हैं। ये आपको हमको इसलिए लिखने हैं क्योंकि अगले साल ये कॉलम में आना चाहिए कि आपने इसमें से पिछले साल अगर कोई क्लेम किया है तो वो उस अमाउंट को आप बताएं। तो ये पार्ट ए है, पहला चेंज जो कि इसके अंदर आया। सिमिलरली पार्ट बी के अंदर उन लोगों के लिए जो लोग सेक्शन 10AA के अंदर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वहां पे कट ऑफ डेट है आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की, तो उस प्रोजेक्ट की डेट को भी इन्होंने 31 जुलाई कर दिया है। और वो 31 सर जुलाई आपकी ना संजय जी ये स्लाइड चेंज नहीं हो रही है, स्लाइड सेम रह रही है। तो एक सेकंड, हाँ मैं दोबारा डालता हूँ। हाँ जी, स्लाइड ना मूव नहीं कर रही। हाँ जी, एक सेकंड, यही तो इसलिए पूछ रहा था सर मैं। नहीं पहले चेंज हो रही थी, अब अच्छा, जैसे चेंज हुई है। अब मैं दोबारा एक बार फिर शेयर करता हूँ, दोबारा से करिएगा। अब तक तो पिटाई कर देते मुझे। अब देखिए हुई, अब हो रही है जी चेंज, अब हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ओके कंटिन्यू। हाँ, तो ये मैं एक मिनट दोबारा बता देता हूँ। शेड्यूल DI में ये ग्रे पोर्शन में टोटल अमाउंट देना है और यहाँ पे एक्सटेंडेड पीरियड का अमाउंट देना है। ऐसा ना हो कि आप 31 मार्च तक का यहाँ दे दें और एक्सटेंडेड पीरियड का यहाँ दें, टोटल अमाउंट आएगा यहाँ, नहीं तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। सिमिलरली 10AA में अगर हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट 31 मार्च के बाद हुआ 31 जुलाई तक, तो वो हमको यहाँ देना है। और ये आपके कैपिटल गेन से रिलेटेड है, LTG और ये SCG, ये सेक्शंस की टोटल डिडक्शन ग्रे पोर्शन में देनी है, और जो अमाउंट आप यूटिलाइज कर रहे हैं बिटवीन 1 अप्रैल एंड 31 जुलाई वो यहां देना है। अब मैं आपको लेके चलता हूं दूसरा चेंज जो कि 1 से लेकर 6 फॉर्म तक सभी फॉर्मों में आया है।
ये आपका चैप्टर 6A के अंदर दो डिडक्शंस फाइनेंस एक्ट 2019 से आई थी, इनको इन्होंने डाला है यहाँ पे। एक तो अफोर्डेबल हाउसिंग वाली 80EE की डिडक्शन थी, जो कि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रही है। दूसरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर जो इंटरेस्ट देंगे उसकी डिडक्शन भी 80EB की जो है वो इंट्रोड्यूस करी है, जो कि मेरी रेड पोर्शन में आपको मैं दिखा रहा हूं। इसलिए ये दो आपके नए चेंजेस हैं। अगर आपने अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर क्लेम लेना है तो आपको वो 80EE में नए सेक्शन के अंदर लेना है। इसमें भी एज मैंने बोला कि ये भी आप जो है वो एक्सटेंडेड पीरियड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब ये सर 3 चेंजेस आए हैं हमारे, विच आर रिलेटेड टू चैप्टर 6 से। पहला और चेंज आया ये ATLA1 और 1A, ये एक डिडक्शन है जो इसमें इस साल पहली बार इंट्रोड्यूस हुई है, जो एक बैंक्स के मर्जर वगैरह से रिलेटेड है। ये 15 साल के लोगों के लिए जो फॉर बैंक्स है उनको है। दूसरी डिडक्शन जो है ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल, जो हमारे जो गुजरात गिफ्ट सिटी जैसे जो हमारे सेंटर्स हैं वहां के लिए एक ये डिडक्शन जो 10 ईयर की आई है, उसका ATLAIA करके एक सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है, जो कि वो यहाँ पे अलग से दिखाना है। इसके अलावा एक और डिडक्शन शुरू हुई है जो कि ATPA से रिलेटेड है। ये 5 साल के लिए मिलेगी उन लोगों के लिए जिन लोगों ने प्रोड्यूसर कंपनी में कोई करनी है। अब इसका चेंजेस 1 से लेकर 6 में सभी केसेस के अंदर इन्होंने कर दिया है। इट मे नॉट बी रेलिवेंट इन फॉर्म नंबर 1 बट दैट हैज बीन मेड इनटू ऑल फॉर्म 1 to 6। अब मैं आपको लेके चलूंगा 1 से लेकर 4 फॉर्म्स के अंदर कॉमन चेंजेस कौन से हैं। तो सर यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेरीज आएंगी। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी डेलिब्रेशन का एक सब्सटेंशियल पार्ट जो है वो एग्जाम्पल यहाँ पे दूं ताकि हम लोगों की कोई क्वेरी ना बचे। लेकिन उसके बाद भी मैं ऑर्गेनाइजर से कहूंगा कि चैट बॉक्स को अब जब मैं यहाँ पे पॉज करूंगा तो चैट बॉक्स खोल ले, और उसमें कोई क्वेरी रह जाए तो उसको मैं यहीं खत्म करूंगा, क्योंकि यहाँ बहुत कंफ्यूजन। सबसे पहले मैं ये एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन देना चाहता हूँ। यहाँ जो लोग रिटर्न फाइल करेंगे उनको ध्यान देना है कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो लोग नॉन एसएससी हैं, जिनकी इनकम बिलो टैक्सेबल है। अगर उनकी इनकम अदरवाइज टैक्सेबल है तो उनके लिए ये कॉलम नहीं है। ये नया कॉलम सिर्फ उन कैटेगरीज के लोगों के लिए है जिनकी नॉन टैक्सेबल इनकम है, लेकिन वो इन 3 किसी क्राइटेरिया में फॉल आउट होते हैं, उनको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो नेक्स्ट, अगर आप जो है टैक्सेबल इनकम में है तो आपको सीधा जो है नो कर देना है, और ये बाकी का फॉर्म आपके लिए डिसेबल है। अगर आप यहां यस करेंगे तो इसका मतलब एंड ऑफ द डे में आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए। तो ये प्लीज नोट करें, अगर आप कहीं करके वैलिडेट कर देंगे और यहां टिक करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अब पहली कंडीशन उन लोगों को जिनकी बिलो टैक्सेबल लिमिट है, बट दे हैव टू फाइल द रिटर्न इफ they have deposited more than 1 crore rupees in one or more current account during the previous year। 1/4/19 से लेकर 31/3/20 के बीच में जिन्होंने करंट अकाउंट में, यहां सेविंग बैंक नहीं है, करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ऊपर की डिपॉजिट करी है। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज इट विद वन कैश डिपॉजिट, वो अलग चीज है, वो AIR में जाएगी, यहां उसका कोई लेना देना नहीं। करंट अकाउंट
और उस एसएससी के अगर एक से ज्यादा करंट अकाउंट हैं तो एग्रीगेट ऑफ ऑल द अकाउंट हैज टू बी सी, और ये एग्रीगेट अमाउंट जो डिपॉजिट हो रहा है, मान लीजिए आप डिपॉजिट करके विड्रॉ कर रहे हैं और फिर डिपॉजिट कर रहे हैं, तो वो डिपॉजिट में काउंट होगा या नहीं? वो डिपॉजिट में काउंट होगा। तो क्रेडिट साइड पे जो आपके आए हैं वो आपके, हाँ ये हो सकता है कि अगर आपका कोई चेक बाउंस हो गया हो और वो कॉन्ट्रा हो गया हो और अल्टीमेटली वो डिपॉजिट नहीं आया हो, तो वो इस अमाउंट की एग्रीगेट काउंटिंग के अंदर नहीं आएगा। अब ये कहेंगे कि साहब ऐसा आदमी कौन हो सकता है जिसकी 1 करोड़ की डिपॉजिट हो और जो है वो इनकम बिलो टैक्सेबल हो? पॉसिबल है सर, ये जरूर बहुत सारे केसेस हैं जहां पे ये इसको मैप करना चाह रहे हैं, इसलिए जो है इन्होंने इसको यहाँ डाला है। दूसरा, यहाँ पे ये कह रहा है have you incurred expenditure of an amount or aggregate of an amount exceeding 2 lakh for travel to a foreign country for yourself or for any other person? जब ये लास्ट ईयर 2019 में ये प्रोविजन लाया गया था तो उस टाइम इन्होंने ये कहा था कि नेबरिंग कंट्री को नहीं डालेंगे, लेकिन कोई सर्कुलर नहीं आया। तो आज की डेट में आपको 2 लाख रुपया अगर उससे ऊपर आपने अपने ऊपर या अपने किसी और आदमी के ऊपर खर्चा किया है फॉरेन ट्रेवल के ऊपर, तो वो उसके अंदर। अब फॉरेन ट्रेवल इंक्लूड्स दी एक्सपेंडिचर ऑन एयर टिकट, स्टेइंग, फॉरेन करेंसी एटसेट्रा। अब यहां मैं 3-4 एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मेरा बेटा जो है वो एसएससी नहीं है, ही इज ए फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, और वो अमेरिका घूमने जाता है और उसकी टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 3 लाख की है। अब मैं उसके पैसे को दे रहा हूं तो 3 लाख से ऊपर मैं दूंगा, और मैं अगर एसएससी हूं तो मुझे ये कॉलम नहीं लगेगा और बेटे को भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैंने बेटे को पैसे दिए 3 लाख और बेटे ने उसमें से 2,10,000 के एक्सपेंडिचर कर दिए, तो उसको रिटर्न भरनी पड़ेगी इररिस्पेक्टिव कि वो पैसा मेरे से आए। और अगर मैं भी एसएससी नहीं हूं तो मुझे नहीं भरनी, क्योंकि मैंने पैसा उसको ट्रेवल के लिए नहीं दिया, मैंने गिफ्ट दिया। हाँ, अगर मान लीजिए 2,10,000 में से 1,50,000 की मैं उसको पेमेंट करता हूं चेक से, और 1,50,000 के खर्चे में डायरेक्ट उसके बिहाफ पे ट्रेवल एजेंट को या उनको देके 3 लाख का टोटल खर्चा करता हूं, और मैं भी एसएससी नहीं हूं, वो भी एसएससी नहीं है, तो ये पॉसिबल है कि दोनों आदमी रिटर्न फाइल ना करें। तो ये जो है मैं इसके प्रोविजन पे आपको लेके चलूंगा। यहाँ पे उसने कहा है इनकर्ड मोर देन, लेकिन जब आपका फॉर्मेट आया तो फॉर्मेट को एक्सपेंडिचर से इसने लिंक कर दिया, तो इसमें एक्सपेंडिचर इनकर है। अब यहाँ एक डिफिकल्टी आई, मेरा ब्रदर यूएस में है, अब उसने मेरी फैमिली के लिए टिकट सब भेज दी, हर चीज कर दी, और हम लोग सब वहां चले गए, और इस पे टोटल 4 लाख रुपए 3 लाख रुपए खर्च हो गए। मेरे ब्रदर का कोई भी इंडिया के अंदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इज ही लायबल टू फाइल ए रिटर्न? इस अगर आप इसको बेयरली रीड करें तो यस, ही इज लायबल टू फाइल ए रिटर्न इन इंडिया। हमने अपने डॉक्टर गिरीश ओझा जी को भी रिक्वेस्ट करी है, और मैंने भी अपने लेवल पे कहा है कि इसकी क्लैरिफिकेटरी दें, क्योंकि उनकी कोई भी सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में नहीं है और वो एसएससी इंडिया में नहीं है, कोई एसेट नहीं है। आप उन लोगों को कैसे
फोर्स करोगे, ढूंढोगे ऐसे कि वो जो है आपको यहाँ रिटर्न फाइल करे, और वो नॉन फाइलर होंगे अगर वो नहीं करेंगे। तो आई एम होपफुल दैट some amendment or some notification will come in respect of those people, those who are staying or those who are outside India. तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक्सपेंडिचर से इनकर्ड मतलब है जो आदमी अपनी बुक में खर्चा बुक करेगा या अपने बैंक अकाउंट से देगा, वो इम्पोर्टेंट है। अब वो बात अलग है कि मान लीजिए मैं गुप्ता जी के लिए दे दूं और गुप्ता जी मेरे लिए दे दें, और कोई भी अमाउंट 2 लाख से ऊपर नहीं हो, और अगर हम लोग एसएससी नहीं है तो नहीं है, 56 में आएगी इनकम, उसकी वजह से एसएससी बने, तो हमको रिटर्न यहाँ फाइल ही नहीं करनी है, फिर हमको रिटर्न फाइल करनी है एज ए नॉर्मल एसएससी। सो बी केयरफुल, इफ the below portion of the entire return form is having a positive income, then this particular section is not applicable to you. This is part A general, तो ये नहीं है। तीसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जो लोग खर्चा कर रहे हैं एग्रीगेट में 1 लाख रुपए से ऊपर, 1,01,000 रुपए से लेकर, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कर रहे हैं और वो एसएससी नहीं है तो उनको रिटर्न फाइल करनी है। अब यहाँ बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आती है। मान लीजिए मैं एक बिल्डिंग में, जैसे मैं जनकपुर में, यहाँ पे फ्लोर है, हम 4 लोग यहाँ पे को ओनर्स, और मीटर जो है वो मेरे जो ओरिजिनल ओनर है उसके नाम है। ओरिजिनल ओनर अब है ही नहीं, वो चला गया, और हम लोग जो है क्या करते हैं कि सारे लोग एक एक हिस्सा अपना अपना सब मीटर लगाया हुआ है वो देते हैं, और वो मैं जो है वो सबके पैसे लेके और वो जमा करा। अब ये 1 लाख से ऊपर आता है। अब मान लीजिए हमारा किसी का भी इंडिविजुअल एक्सपेंसेस 1 लाख से ऊपर नहीं है, और हम में से कोई एसएससी भी नहीं है, लेकिन पेमेंट मैं कर रहा हूं, तो क्या मुझे रिटर्न भरनी चाहिए? नहीं, मेरे को रिटर्न नहीं भरनी। अब क्या उसको, जो ओरिजिनल ओनर था, उसको रिटर्न भरनी चाहिए क्योंकि उसके नाम मीटर है, तो उसको भी रिटर्न नहीं भरनी क्योंकि वो एक्सपेंडिचर इनकर नहीं करता। अब बहुत सारे ऐसे केसेस आएंगे जहां लोग प्रॉपर्टियां बेच चुके हैं, तो मेरा ये सजेशन है अपने मेंबर्स को कि हम एक अपने पास वर्किंग पेपर जरूर संभाल के रखें, क्योंकि मैं यहां बताना चाहूंगा दैट सेक्शन 148 is a draconian provision and it will be there for 7 years. Now, how the government will know that somebody had incurred an expenditure above 1 lakh rupees? ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से डिटेल मांगेंगे, और उसके बाद देखेंगे कौन सा आदमी वहां पे एसएससी नहीं है उस एड्रेस पे। अब ये एक बहुत मुश्किल काम होने वाला है, तो इसलिए अगर आप कोई ऐसा ज्वाइंट एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जो कि औरों से ले रहे हैं, तो उनसे अंडरटेकिंग भी लें, लेटर भी लें अगर मीटर आपके नाम, और अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेच चुके हैं या कुछ कर चुके हैं और आप एसएससी नहीं है और वो मीटर पे पेमेंट 1 लाख रुपए से ऊपर हो रही है, तो प्लीज जो है आप उस जिस मकान को जिसको बेचा है उसको नोटिस दें कि वो मीटर चेंज करे। हाँ, आप अगर एसएससी हैं तो आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि आपने वैसे तो चेंज हो जाना चाहिए, म्यूटेशन हो जानी चाहिए, पर बहुत बारी नहीं हो। ये स्पेशली और लोगों में प्रॉब्लम आएगी जिन केसेस के अंदर सीनियर्स की डेथ हो गई। अब उनके नाम के नोटिस जब आएंगे तो उनके लीगल हेयर भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं, तो हमको वहां भी प्रॉब्लम। कुछ ऐसे लोग जो इंडस्ट्रियल देते हैं सीजनल 1 महीने या 2 महीने के लिए, और उनका बहुत सारा खर्चा आ जाता है,
तो उनको भी एक अंडरटेकिंग लेनी है उस टेनेंट से जो कि 1 लाख से ऊपर खर्चा दे रहा है कि आप ये बिल आप भर रहे हैं, हमें इसकी अंडरटेकिंग दें और उसके जो भी डिटेल है वो आपको लेके रखने चाहिए, so that tomorrow you are not in trouble. Now, Bhardwaj, I will stop here so far as queries which are related up to this point. कोई क्वेरी है? हेलो, मेरे को भी कोई क्वेरी नहीं है. Am I audible? चलिए. Yes, sir, you are audible. कोई अभी कोई क्वेरी क्वेरी नहीं है सर. चलिए, वेरी गुड. अब हम चलते हैं आगे. अब वो चेंजेस हैं जो 1 to 7 में है. तो सर पैन और आधार जो है ये इंटरचेंजेबल यूज होगा, ऐसा इसमें बताया गया था. तो जहां जहां पैन और पैन था वहां आप पैन या आधार कोई चीज कर सकते हैं. ये ऑल अक्रॉस इतनी जगह चेंजेस आया है जहां पे ऑडिटर है ये, और जो है आपकी रिप्रेजेंटेटिव एसएससी है, हाउस प्रॉपर्टी है, इमूवेबल है, ये सब तरीके से इतनी जगह चेंजेस आए हैं जहां मैंने इसको कैप्चर किया है. नेक्स्ट आया है सर डिन नंबर. जैसा कि हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया था कि अगर 1 मई 2019 के बाद आपको डिपार्टमेंट से कोई नोटिस, कोई लेटर अगर आता है और वो कोई चीज आपको कंप्लाई करने के लिए कहता है या कोई चीज आपसे मांगता है, उसके ऊपर कोई डिन नंबर नहीं है तो उसको कचरे के डिब्बे में डाल दीजिए. तो उस चीज को ऑनर करने के लिए इन्होंने उसको यहां इंट्रोड्यूस करा और कहा कि अगर आपका सेक्शन 139(9), 142(1), 148, 153A, 153C और 1192B के अंदर अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं और अगर वो 1 मई 2019 के बाद का नोटिस है तो आपको वो डिन नंबर यहां देना है. मैंने फॉर्म नंबर 1 में एक डाल के देखा था, एक विदाउट डिन नंबर के, तो उसने रिटर्न वैलिड कर दी थी. लेकिन हो सकता है कि ये जो है आपकी रिटर्न ना वैलिड हो. दूसरा, मैंने जो है यहाँ पे एक गलत नंबर डाल के फिर डाल के देखा और मैंने उसके अंदर 1 मई के बाद की डेट डाली तो वो कोई भी यहाँ पे वो डिन नंबर साइट से वेरीफाई नहीं कर रहा है. सो आई कांट से एनीथिंग कि भाई ये क्या है. हो सकता है आने वाले समय में ये डिन नंबर डिपार्टमेंट के डिन नंबर से जो है वो कॉन्फ़िगर हो जाए और ये डिन नंबर अगर आप गलत डालें तो आपकी रिटर्न वैलिड नहीं हो. तो बी केयरफुल. अपनी जो भी 1 मई 2019 के बाद रिटर्न इन सेक्शंस के अंदर की वजह से फाइल हो रही हैं, उसमें अपने को इसकी डेट और नंबर दोनों देना जरूरी है. अब सर एक इन्होंने चेंज किया रिफंड्स के लिए. What they have changed that now you can give more than one account, but you have to say that you want in which bank account the refund. तो फिर क्या फायदा हुआ जी? नहीं सर, इसका फायदा कैसे हुआ? फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ. मान लीजिए मैं आज मुंबई में पोस्टेड हूँ, मैंने मुंबई से रिटर्न फाइल कर. अब आजकल तो सीबीएस का जमाना आ गया, आपको वैसे कोई सर्विस ब्रांच की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे एम्प्लॉयर्स जो हैं वो बैंक अकाउंट खोलते हैं आपका अपने ही बैंक. तो मेरा एक बैंक अकाउंट मुंबई में खुल गया. अब 5 महीने बाद मेरी ट्रांसफर हो गई या मैंने नौकरी छोड़ दी, मैं दूसरी जगह आ गया, मैंने वहां दूसरा खोल दिया. वो अकाउंट मैंने जो है वो अभी है, जब मैंने रिटर्न फाइल करी तो उसका दे दिया और एक और दे दिया. पहले एक ही दे सकते थे. तो पहले प्रॉब्लम क्या आती थी, अगर वो बैंक अकाउंट बंद हो जाए तो उसका बड़ा एक लेंथी प्रोसेस था. आपको एक चेक देना पड़ता था कैंसल्ड,
एक रिक्वेस्ट जाती थी, वो आपके रिकॉर्ड में चेंज होता था, उसका केवाईसी होता था, उसके बाद आपको रिफंड। तो इन्होंने क्या करा, अब आपको ये कहा टिक कर दो, अगर आपका वापस आ गया या कुछ होता ऑटोमेटिक वो दूसरे बैंक अकाउंट में चला जाएगा, आपको लंबे प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इन्होंने यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे सारे बैंक अकाउंट नहीं देने हैं, आपकी मर्जी है, आप एक दें या आप एक से ज्यादा दें, ये आपकी मर्जी। अब चेंजेस जो हैं 2 से लेकर 7 में 4 को छोड़कर, 1 और 4 को छोड़कर, ये सर एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है कि पास थ्रू एंटिटीज। 2 मिनट लूंगा मैं, कुछ लोगों को हो सकता है ये कंसेप्ट ना पता हो। सेक्शन 115 यूए और यूबी के अंदर कुछ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं जो म्यूचुअल फंड की तरह, उनको गवर्नमेंट ने ये मैंडेट किया है कि वो अपनी इनकम को टैक्स बिजनेस इनकम के अलावा वो ना दे, और वो टैक्स जो है शेयर होल्डरों के या यूनिट होल्डर के हैंड में हो। ये क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि अगर इनकम यहां टैक्सेबल होगी, ये एंटिटीज टैक्सेबल हैं, इनके हैंड से जब शेयर होल्डर के हैंड में जाएगी, और शेयर होल्डर अगर नॉन टैक्सेबल है या लोअर टैक्सेबल है तो उसको हिट होगा। तो इन चीजों को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने ये कहा कि अब ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये 2 सर्टिफिकेट इशू करेंगे एवरी ईयर टू देयर यूनिट। एक सर्टिफिकेट ये करेंगे, वो सीए का सर्टिफिकेट होता है कि आपको इतनी इनकम दी गई है, उसमें से इतनी इनकम पे टैक्स आप अपनी रिटर्न में भरेंगे, और उसमें से इतनी इनकम है उसके ऊपर टैक्स जो है ये इन्वेस्टमेंट फंड देगा और आपके हैंड में वो टैक्स भी। अब इन्होंने क्या कहा कि साहब उनका लॉस अगर हुआ, और मान लीजिए मुझे लॉस हो गया, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो गया, अदर सोर्सेज में लॉस, कैपिटल गेन में लॉस हो गया, तो क्या जो यूनिट होल्डर है वो क्या करेगा? उसको तो लॉस, उसकी वैल्यू तो कम हो गई उसकी इन्वेस्टमेंट की, तो आप उसको कैपिटल लॉस दो, या तो वो आप देते नहीं है क्योंकि ये रेवेन्यू है। तो इन्होंने कहा हम आपको लॉस का एडजस्टमेंट भी देंगे, कैरी ओवर भी देंगे, और उसको हम यहाँ पे आपस में एक दूसरे के साथ सेट ऑफ भी देंगे। उसके लिए इन्होंने ये इंट्रोड्यूस करे, और इसके अंदर पास थ्रू एंटिटीज को यहाँ पे शेड्यूल ओएस में इन्होंने इंट्रोड्यूस करा, और ये शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, ये सब जगह इन्होंने एक, ये मैंने ब्लू करा हुआ है, ये इन्होंने यहाँ इंट्रोड्यूस करा। इसके बाद ये इन्होंने एक सिमिलर चेंज शेड्यूल कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में भी किया। अब आपको ये बताना है कि आपका लॉस नॉर्मल है या पास थ्रू एंटिटी से है, और आपको वो कैरी फॉरवर्ड होगा, जैसे कि बाकी केसेस के अंदर लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो रहे। ये लॉस इसलिए यहाँ आया कि 31/3/19 के बारे में जो पहला लॉस था वो अब आप कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, क्योंकि वो 31/3/19 के बाद डिटरमाइन हुआ, और आपको करंट ईयर में वो लॉस पता लगा, और आप उसको करंट ईयर में या तो एडजस्ट करेंगे या उसको कैरी फॉरवर्ड। ये इसके अंदर चेंज आया। सिमिलरली इन्होंने यहाँ पे वो शेड्यूल कैरी फॉरवर्ड में अलग से इन दो कुछ चीजों को दिया है कि इसमें से करंट ईयर में कितना आपका एडजस्ट हुआ या कैरी फॉरवर्ड। अब एक और चीज इन्होंने नई करी कि आपको ये बताना है
कि पास थ्रू इनकम जो हो रही है वो कितनी है, लेकिन आपको ये जो पास थ्रू है इनकम या लॉस जो है, इसमें आपने टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट की है वो भी ये यहाँ पे कैप्चर करना चाहिए। मान लीजिए आपकी इन्वेस्टमेंट तो 10 करोड़ है और आपका यहाँ पे जो है कोई फिगर नहीं है, तो हो सकता है वो मैच करे। या आपकी यहाँ इनकम ही 1 लाख है और आप कैरी फॉरवर्ड या पास थ्रू का लॉस जो है वो 50 लाख कर रहे हैं, तो इट इज ए क्वेश्चन विच इज रिक्वायर्ड टू बी सीन। सो इसलिए इन्होंने बिजनेस ट्रस्ट और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के लिए जो ये प्रोविजन है इसको यहाँ इंट्रोड्यूस करा। सिमिलरली एलटीजी और एसटीजी और एनआरआईस वगैरह के लिए भी अलग एक प्रोविजन इन्होंने करा, जिन लोगों का कोई भी इंफॉर्मेशन फॉरेन एसेट्स की है, शेड्यूल एफए फॉरेन एसेट्स के अंदर जिनको कोई इंफॉर्मेशन देनी, दे हैव टू गिव ए जिप कोड। यहां थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, हम लोग बहुत साल पहले लाजपत नगर रहा करते, वहां पे एक बार मुझे एक चिट्ठी तकरीबन 3 साल बाद आई। तो मैंने पोस्टमैन को कहा कि 3 साल बाद चिट्ठी आ रही है, क्या है? कह रहा है सर लिफाफा तो पढ़ो। लिफाफे के ऊपर सिर्फ लाजपत नगर लिखा था और ना न्यू दिल्ली ना इंडिया, इंडिया की पोस्टेड थी। वो घूमते घूमते मेरे पास पहुंची। हमारे यहाँ पोस्टल डिपार्टमेंट सर देखो एफिशिएंट। फॉरेन के अंदर कोई भी चीज पे अगर जिप नंबर नहीं है तो वो जो है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ कोई सिस्टम नहीं। अब जैसे लाजपत नगर यहाँ भी है, गाजियाबाद में भी है, देहरादून में भी है, कानपुर में भी है। सिविल लाइंस तो मेरे ख्याल से नॉर्थ इंडिया की हर सिटी, इसलिए जिप कोड होना जरूरी। अब इसके पीछे एक और इंटेंशन, यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने जिप कोड लंदन का भर दिया और मैंने वहां दिखाया कि मेरी जो है 400 स्क्वायर फीट की एक शॉप है और उसकी वैल्यू मैं मान लीजिए एक मीगर वैल्यू 2 लाख रुपए देता हूं, तो ये जिप कोड से भी मैप करेंगे कि क्या ये मैटर इन्वेस्टिगेशन के लिए रहना चाहिए या नहीं। इसी तरीके से ट्रस्ट, ये कंट्रीज जो हैं वो आपके मैप होंगे, क्योंकि ये यूनिक होता है और वर्ल्ड में कोई भी जिप कोड कॉमन नहीं हो सकता, इसलिए ये जो है जिप कोड यहाँ पे अब मांग रहे हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन शेड्यूल एफ। अब सर मैं आपको लेके चलूंगा फॉर्म नंबर 6। फॉर्म नंबर 6 पे सिर्फ जो फॉर्म नंबर 6 में चेंजेस हैं, ये जो डिविडेंड आपको लेसर रेट पे रिसीव होगा उसका एक शेड्यूल इन्होंने अदर से अलग से खोल दिया है और शेड्यूल ओएस के अंदर शेड्यूल एसआई स्पेशल रेट पे स्पेशल इनकम जो होंगी वो यहाँ दिखानी। दूसरा सर शेड्यूल एसएच जो 1 और 2 इन्होंने इंट्रोड्यूस करे हैं। शेड्यूल एसएच 1 के अंदर इन्होंने कुछ चेंजेस करे। नाउ दिस शेड्यूल is not applicable to section 8 or companies which are under old section in the Companies Act 25। 1956 कंपनीज एक्ट के 25 सेक्शन और 2013 के सेक्शन 8 की कंपनियों पे ये एप्लीकेबल नहीं, या उन कंपनियों पे जो कि लिमिटेड बाय गारंटीज हैं उनके केस में ये नहीं एप्लीकेबल है। बाकी सब केस में एक ये डिटेल भरनी है और अगर हम इसको देखें तो हमें आज की डेट में ही अपने क्लाइंटों को ये बता देना चाहिए कि ये आपको इंफॉर्मेशन देनी है और ये इंफॉर्मेशन एज ऑन 31 मार्च 20 की देनी है। इसके अंदर उसका रेजिडेंशियल स्टेटस भी देना है।
उसका टाइप ऑफ शेयर, पैन भी देना है, डेट ऑफ अलॉटमेंट, नंबर, फेस वैल्यू, इश्यू प्राइस, दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा प्रीमियम, और कंपनी ने कितना अमाउंट रिसीव किया है। अब सर कई केसेस में शेयर होल्डर आपका नया आ जाता है, तो कंपनी ने उस केस के अंदर तो कोई अमाउंट जो है उस शेयर होल्डर से रिसीव नहीं किया, तो जो अमाउंट ओरिजिनल शेयर होल्डर से रिसीव किया है वही आपको यहाँ पे देना है, फिगर एंड की देनी है। लास्ट ईयर इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी थी कि जिनके पैन नंबर नहीं है तो वो एक पर्टिकुलर चीज भर दें, अब इन्होंने पैन की जगह आधार भी डाल, तो जब ये फॉर्म नंबर 6 का स्कीमा नोटिफाई होगा तब हमें ये पता लगेगा कि यहाँ क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं, पर आज की डेट में ये मैंडेटरी है। इसी तरीके से सर एक जिन कंपनीज के ऊपर आपको रॉयल्टी पे 50% टैक्स देना है उनके लिए इन्होंने शेड्यूल ISI, स्पेशल इनकम और शेड्यूल OS के अंदर 2 अमेंडमेंट कर दिए हैं। ये बहुत कम लोगों के लगता है, बहुत पुराने लोगों के। देन जैसा कि हमको ये मालूम है कि लास्ट ईयर देयर वर एन ऑप्शन टू क्लेम द lesser rate of taxation or special rate of taxation, and in that case we need to tick this particular in the e-utility for domestic company, क्योंकि जो भी आप इसको जब टिक करेंगे तो आपका रेट जो फॉर्म के अंदर इनकम कैलकुलेट होगी वो वैलिडेट उसी रेट से होगी जिस रेट से इस सेक्शन के अंदर ये एप्लीकेबिलिटी। तो इसलिए अगर आप नॉर्मल रेट में हैं या स्पेशल रेट में हैं आपको यहाँ वो टिक करना पड़ेगा ताकि आपकी रिटर्न उसी सेक्शन में वैलिडेट हो। अब ये सर एक आया जो हम वेरिफिकेशन अपनी करते हैं रिटर्न फाइलिंग डिजिटल जहां लगाते हैं तो हमको ये इंफॉर्मेशन देनी होती है। यहाँ पे इन्होंने ये कहा हमें अब डिन नंबर चाहिए MCA का। बहुत सारे केसेस के अंदर ऐसा पाया गया कि कंपनी तो चल रही है पर ROC में वो बंद हो, और इसी तरीके से उन्होंने यहाँ पे अब कहा नहीं हमें ROC का डिन नंबर चाहिए। अब ये जब आएगी तब हमको ये देखना है कि क्या ये डिन नंबर ये MCA से वेरीफाई करता है, जैसे कि सेबी के साथ इनका अरेंजमेंट हो गया, जैसे कि GST वालों के साथ इनका अरेंजमेंट हो गया, जैसा कि कस्टम के साथ इनका कोई एग्रीमेंट है, ऐसे ही MCA के साथ भी अगर कोई लिंक हो गया और आपने यहाँ पे डिन नंबर गलत डाला तो आपकी ये रिटर्न वैलिड नहीं हो, और अगर वो डिन नंबर वहां पे ब्लॉक है तो ये भी यहाँ पे आपको रिटर्न फाइल नहीं करने देगा। इसलिए प्लीज बी केयरफुल दैट यू शुड हैव ए एक्टिव डिन नंबर ऑफ ए पर्सन हु इज साइनिंग द रिटर्न। अब सर ये वैसे कोई अमेंडमेंट नहीं है, पहले लोग भर देते थे, अब इन्होंने को ओनरशिप को अलग से कैपिटल गेन के अंदर कॉलम दे दिया है, both in short term and in long term in the case of the company। एक इंड एस वाले जो कंपनियां थी उनका एक नो अकाउंट का केस था, वो इन्होंने हटा दिया कि इनका इंड एस वाले इंडिया के अंदर अगर मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो वो नहीं दिखाते थे, लेकिन इन्होंने उसको वो अब डिलीट कर दिया। अब सर मैं आपको लेके चलूंगा चेंजेस विच आर देयर in 3, 5 and 6। जैसा कि हमें मालूम है in order to boost the auto industry the government has given additional rate of depreciation to all motor vehicle which are purchased between
23rd August and 31st March 20 an additional depreciation of 15%. तो इन्होंने जिन चीजों के ऊपर 15 था वहां 30 हो गया, और जहां 30 था मोटर व्हीकल पे वहां 45 हो गया। अब वो मोटर व्हीकल, मोटर लॉरीज, टैक्सीज, ये उनके ऊपर जिनके ऊपर 30% पहले मिला करता था, अब उनको इस बार 45 होगा, और 45 का कोई ब्लॉक नहीं था, इसलिए वो उस ब्लॉक को यहाँ डाल दिया। ये नोटिफिकेशन नंबर 69/2019 डेटेड 20 सितंबर से एनहांस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। कोई आवाज आ रही पीछे से जी? कहीं कोई अनम्यूट हो गया जी फिर? यस। अब आपको ये बताऊं कि बहुत सारे लोगों ने ये पूछा मुझसे कि अगर मैं 2 अक्टूबर को के बाद या 30 सितंबर के बाद कोई चीज खरीदूंगा तो क्या मुझे ये मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, आपको आधा मिलेगा। आपको अगर आपने कोई मोटर व्हीकल, मोटर कार परचेज करी है तो शेड्यूल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो आपको आएगा उसका आपको 50% मिलेगा, उसके अंदर कोई चीज नहीं है। अब ये DTAA से जो लोग फॉरेन टैक्सेशन करते हैं उन लोगों के लिए एक छोटा सा ये अमेंडमेंट आया, यहाँ पे अब हमको हर चीज भरनी है, कंट्री नेम, कोड, आर्टिकल, क्या रेट है, TRC है नहीं है, ये सब भरने हैं, और अगर हम ये भरेंगे तो हमारी रिटर्न जल्दी प्रोसेस और हमको जल्दी क्लेम मिलेगा। इसलिए ये वो है लोअर रिडक्शन के लिए भी यहाँ पे सब चीजें इन्होंने कैप्चर कर ली। ये अब लोअर रिडक्शन वाला जो है यहाँ पे भी आ गया। अब ये सर पहली बार आया सेकेंडरी एडजस्टमेंट, ये भी रिलेटेड टू इंटरनेशनल टैक्स। इसके अंदर क्या चेंज आया सर? क्या हुआ कि अगर आपका कोई डिपार्टमेंट से डिस्प्यूट और आप वो डिस्प्यूट को कहते हो ठीक है भैया एग्री कर लेते हैं, टैक्स दे देते, तो डिपार्टमेंट ये कहता है कि आपको उसकी जो है फॉरेन करेंसी टू डेट एक्सटेंड भी रिपेट्रिएट करनी है, और अगर आप उसको रिपेट्रिएट नहीं करेंगे तो हम आपसे टैक्स ले लेंगे उसके ऊपर जो रिपेट्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक रिपेट्रिएट नहीं करते उसके ऊपर एक नोशनल इंटरेस्ट के ऊपर भी टैक्स लगता है। तो अब जो है उस प्रोविजन को जो 2019 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ उसको यहाँ पे प्रैक्टिकल करने के लिए शेड्यूल TPS से मींस ट्रांसफर प्राइसिंग सेकेंडरी एडजस्टमेंट करके इन्होंने यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया। हाँ जी, एनी क्वेरी? हेलो। अब एक और आया यहाँ पे सेक्शन 43B में, अगर आपने किसी NBFC से जो कि डिपॉजिट टेकिंग है या सिस्टमेटिकली नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी है, अगर उससे आपने लोन लिया और इंटरेस्ट नहीं दिया उसको तो वो भी आपको डेट्रीमेंटल हो जाएगा, सिमिलरली एज इट इज इन द केस ऑफ द अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और 43B में डिसअलाउ हो जाएगा। उसके लिए इन्होंने फॉर्म नंबर 3, 5 और 6 के अंदर ये अमेंडमेंट कर दी 43B सेक्शन के अंदर। अब सर यहाँ पे those who have to do the audit, so please ask your as much as queries you want, because ये डायरेक्टली हमको इम्पैक्ट करेगा, और मैं यहाँ पे फिर थोड़ा समय लूंगा एज कंपेयर टू अदर सेक्शन। आपको अगर मैं ये कहूं कि ये लोगों ने कहा कि इस साल पे ये एप्लीकेबल ही नहीं सर, ये उन सभी ऑडिट्स पे लगेगा
जो असेसमेंट ईयर 2021 की हैं, ऐसा फाइनेंस एक्ट 2020 में कहा गया। जैसा कि एफएम साहिबा ने ये कहा था और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि अब छोटे व्यापारियों को जो 5 करोड़ तक अपनी टर्नओवर कर रहे हैं और डिजिटल बिजनेस है, उनको अब रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं, वो टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं। अब साहब, लेट अस सी व्हाट इज द प्रोविजन एंड व्हाट इज द फॉर्म इज सेइंग। और मैं आपको पहले प्रोविजन की तरफ लेके चलता हूं, जो कि सेक्शन के अंदर 2020 के नए वाले इनकम टैक्स का है। इसमें एक प्रोवाइजो ऐड किया, उसमें उन्होंने ये कहा कैरिंग ऑन ए बिजनेस प्रोवाइडेड में ये बोला हुज एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट रिसीव्ड including amount received from sale, turnover, gross receipt during the previous year in cash does not exceed 5% of the said amount. Which amount? Which is said earlier. उसके बाद ये जो कंडीशन है, ये ट्विन कंडीशन है, दोनों सेटिस्फाइड होनी चाहिए, सिंगल नहीं है। दूसरी क्या है? aggregate of all payment made including amount incurred for expenditure in cash during the previous year does not exceed 5% of the said amount। और ये उन लोगों के लिए टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है जिनकी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर और 5 करोड़ से नीचे। अब सब मैं सबसे पहले इस चीज को 3-4 पार्ट में डिवाइड करूंगा फॉर द पर्पज ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं आपको एग्जांपल से लेके चलूंगा और मैं वापसी लेके चलूंगा आपको एक्चुअल रिटर्न में जो उन्होंने पीडीएफ के अंदर नोटिफाई करी। साहब ये कहता है इफ नो तब भरे whether during the year total sales turnover gross receipts of business exceed 1 crore but does not exceed 5 crore। तो बहुत सारी जगह चल रहा है कि साहब 1 करोड़ से नीचे जिन लोगों को 8% से कम आया है उनको क्या करना है, 2 करोड़ से नीचे जिनको आया है उनको क्या करना है, वो सब अलग क्वेश्चन है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों का टर्नओवर 1 से 5 के बीच में है। तो पहला क्वालिफाइंग अमाउंट जैसे हम ATG में कैलकुलेट करते थे कि पहले क्वालिफाइंग अमाउंट पे आए और फिर हमको बाकी ट्विन कंडीशंस के ऊपर चलना है। तो मैं एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए मेरी टर्नओवर 4 करोड़ 90 लाख रुपए है और मैं मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन करता हूं। अब अगर मेरी 4 करोड़ 90 लाख रुपए है तो क्या मेरे लिए ये क्लॉज एप्लीकेबल है? यस। अब 5% मुझे कैलकुलेट करना है किस अमाउंट का? 4 करोड़ 90 लाख का। अब साहब 4 करोड़ 90 लाख तो मेरे को रिसीव नहीं होंगे और हो सकता है कुछ पिछले साल के भी रिसीव हो और बहुत सारे ऐसे पैसे भी मेरे पास रिसीव होते हैं जो कि मेरे डेटर्स के नहीं है, हो सकता है मैंने ही बैंक से निकाले हो। क्या वो भी पैसे जो है
इसके अंदर कैलकुलेट होंगे फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ 5%। अब मैं, हेलो, हेलो, मैं आपको अब यहाँ पे बताना चाहूंगा कि पहला मैंने एग्जाम्पल फ्लैग किया 4,90,00,000। अब मैं सर्च को पढ़ता हूं, ये क्या कहता है, वेदर एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग अमाउंट रिसीव फॉर सेल। ये यहां नहीं कहता है इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर टर्नओवर, it says whether aggregate of all amount received including amount received for sales, turnover, gross receipts। ये तो ऊपर भी कहा था, मुझे यहां समझ में आती है, ठीक। और कैपिटल अकाउंट सच एज कैपिटल कंट्रीब्यूशन, लोन्स एटसेट्रा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो अगर मान लीजिए 4,90,00,000 में से मेरे पास इस साल के 4.5 करोड़ आ गए, वैसे तो आए नहीं होंगे, लेकिन मान लीजिए मैंने प्रज्यूम कर लिया 4.5 करोड़ रुपए आ गए एग्रीगेट। फिर मैंने 3 करोड़ रुपए के लोन ले लिए, कितने हो गए, 7.5। फिर मैंने 1 करोड़ की कैपिटल ले आया, कितने हो गए, 8.5। अब ये जो 8.5 है, इसमें एक और अमाउंट है। मैं क्या करता था, रोज बैंक में जाता था, पूछते था भाई कितने पैसे है करंट अकाउंट में, तो बोला जी आपके 25 लाख है, कोई नहीं 22 लाख दे दे। अगले दिन फिर आया, 22 लाख में से 21,90,000 जमा करा दिए या 23 लाख जमा करा दिए उस दिन की सेल्स भी। तो क्या मेरे ही सेल्फ डिपॉजिट को इसमें इंक्लूड करना है? नहीं साहब, ये जो है इन रिलेशन टू, हम इन चीजों से रीड करेंगे जो कि मेरी सेल से कनेक्टेड हो, टर्नओवर से कनेक्टेड हो, ग्रॉस रिसीट से कनेक्टेड हो, कैपिटल अकाउंट से कनेक्टेड हो, या कैपिटल कंट्रीब्यूशन लोन से। अब क्या ये अमाउंट 4,90,00,000 से ऊपर हो सकता है, कम हो सकता है? यस, जैसे मैंने आपको बताया 4.5 करोड़, 3 करोड़, 7.5 करोड़, और आपका 1 करोड़ पिछला आ गया, 8.5 करोड़ आपका अमाउंट आ गया। अब ये 8.5 करोड़ का आप 5% कर लीजिए, और 5% से कम अगर आपके पास कैश आया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अब आपकी सेकंड कंडीशन भी पूरी हो। अब हम चलते हैं थर्ड कंडीशन। अगर ये भी पूरी हो गई तो आपको टैक्स ऑडिट नहीं करानी है, और अगर ये नहीं पूरी हुई, पहली 2 पूरी हो गई, तो भी आपको करानी। अब वो क्या कहता है, ये कहता है वेदर एग्रीगेट ऑफ ऑल पेमेंट मेड इंक्लूडिंग अमाउंट इनकर्ड फॉर एक्सपेंडिचर और कैपिटल अकाउंट such as acquisition asset, repayment of loan during the previous year in cash does not exceed 5%। तो पहले तो आपको एग्रीगेट करना पड़ेगा सारे खर्चों को, सारी एसेट एक्वायर करी है जो आपने पेमेंट करी ड्यूरिंग द ईयर, उनको आपको करना पड़ेगा। रीपेमेंट ऑफ लोन को जितने आपने किए उनको टोटल करना पड़ेगा। उन सब को टोटल करके आपको 5% कैलकुलेट करना है, और वो 5% आपका अगर हो गया तो ऑडिट करानी है, और लेस देन 5% कैश में रहा तो ऑडिट नहीं करानी। तो एक बार दोबारा रिब्रश करते हैं। पहले तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि आपकी ग्रॉस रिसीट टर्नओवर, ये कहां से देखेंगे, ये साहब अपना टैक्स ऑडिट का गाइडेंस नोट डिफाइन करता है। सेल्स क्या है, टर्नओवर क्या है, ग्रॉस रिसीट क्या है, और ये रिलेटेड टू बिजनेस है, नॉन बिजनेस के लिए नहीं। कैपिटल ये नहीं आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं आएगी,
तो आपको 44 AB के लिए गाइडेंस नोट 44 AB का कंसिडर करना है। और अगर आपका 1 करोड़ से ऊपर और 5 करोड़ से नीचे है तो आप पहली कंडीशन को मीट आउट। आपने नीचे 5 करोड़ से कम ले रखे हैं और 5 करोड़ से 5% आपके 25 लाख से नीचे कैश की आपकी है, तो आप ये सोचे आपको ऑडिट नहीं करानी। नहीं साहब, ऑडिट आपको कैलकुलेट करनी है ओवरऑल अमाउंट जो मैंने अभी डिफाइन करा 8.5 करोड़। और सिमिलरली नीचे पेमेंट का, अगर मान लीजिए आपका टोटल पेमेंट करी, बाकी सब आपकी क्रेडिट हो गए, या आपने रीपेमेंट नहीं करी कोई भी, और आपने टोटल पेमेंट ही 3 करोड़ की करी, 3 करोड़ की पेमेंट के ऊपर 5%, 5 या 15, आपको अगर 15 लाख रुपए से ऊपर आपने कैश नहीं दिया तो कोई आपको टैक्स ऑडिट करने की जरूरत नहीं। एक क्वेश्चन मुझसे यहाँ पे पूछा गया, एक मेरे पास कल आया, एक अमेजन जो है COD कलेक्ट करती है मेरे ब्याज पे, तो क्या वो कैश माना जाएगा? रिसीव बाय मी। अमेजन तो मुझे चेक से देता है, लेकिन अमेजन कैश लेता है मेरे ब्याज पे। अब ये सर डिपेंड करेगा एग्रीमेंट बिटवीन मी एंड अमेजन। अमेजन जो है अपने कस्टमर्स को कोई भी चीज फैसिलिटी अगर देता है और मेरा वो एज ए एजेंट कलेक्ट नहीं करता। अरे सर ये अनम्यूट हो जाते हैं कोई। हेलो। और अमेजन जो है मेरे को एज ए एजेंट कलेक्ट नहीं कर रहा है, वो अपने एज ए प्रिंसिपल कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल को रास्ते में चोरी हो जाता है तो मेरा कोई लॉस नहीं है, उसका एजेंट है। मेरा प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल एग्रीमेंट नहीं है, तो उस केस के अंदर मेरी ओपिनियन में ये क्लॉज नहीं लगेगी। लेकिन अगर मेरा प्रिंसिपल और एजेंट का विद ऑल रिस्क एंड रिवार्ड एग्रीमेंट है और वो मेरे को बाद में चेक देता है, तो फिर भी मेरे को ये मानना पड़ेगा कि वो कैश जो है मेरे ब्याह पे कलेक्ट कर रहा है। सिमिलरली ऐसे ही पेमेंट से रिलेटेड है। तो ये सर मेरा यहाँ पे मेजर जो हम लोगों को डायरेक्ट आने वाले टाइम में इम्पैक्ट करने वाला है, ये उसका है। अगर यहाँ पे कोई क्वेरीज हो तो मैं उसको यहीं लेना पसंद करूंगा। फिर मैं एनी क्वेरीज? हेलो हेलो। चलिए सर, मुझे नहीं लगता कोई क्वेरी है अभी। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट। अगर होगी तो बाद में फिर ले लेंगे। चैट बॉक्स के अंदर 16 क्वेरीज हैं सर। कैन आई टेक? सर इट इज यूजिंग वर्ड इंक्लूडिंग विच मीन्स, मैं शुरू से लेता हूँ सॉरी। जितेंद्र चांदना जी कह रहे हैं मेंबरशिप नंबर दे रहे हैं, ये तो सब मेंबरशिप दे रहे हैं। इसके अलावा नहीं सर, शुभम बंसल जी की सबसे पहली क्वेरी है जो आप पढ़ रहे थे। अच्छा, मैं शुभम बंसल जी के रखता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। सर इट इज यूजिंग वर्ड इंक्लूडेड विच मीन्स डेफिनेशन inclusive illustrated list, then we are not considering self deposit. Yes, I have already told self deposit नहीं लेनी है, क्योंकि जब भी कहीं बात जाता है वो आपको इजिज्डम जेनरिस का एक प्रिंसिपल है, उसको आपको यूज करना चाहिए कि जो पहले पैराग्राफ में पहले चीजें कही गई हैं उनसे ही रिलेटेड है। तो आप ये अनरिलेटेड है। प्रोप्राइटरी केस के अंदर अपनी, हाँ, आप पार्टनर अगर कोई पैसे लेके आएगा कैश में तो वो इंक्लूड होगा। अगर आप अपने ही बैंक से निकाल के अपने ही बैंक में कैश जमा करा रहे हैं तो ये इसकी कोई चीज वो नहीं करी है इन्होंने। इसके बाद इन्होंने कहा है सर इट इज यूजिंग वर्ड इंक्लूडिंग, ये तो वही हो गया, 2 बार टाइप कर दी शायद इन्होंने।
So I think it is over. ठीक है गुप्ता जी? Okay. So I go back to my slide again. अब ये सर आया है चेंजेस 1 and 4 के अंदर। कुछ नहीं है, छोटा सा चेंज है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट देनी है। ITS 7 बहुत छोटे से चेंजेस हैं। जिन लोगों ने इस साल में कोई ऑब्जेक्ट चेंज किया है तो उनको दोबारा फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेनी थी। अगर उन्होंने ली है तो उसकी यहाँ पे आपको डिटेल भरनी है। वैसे ये मेजरली अगले साल में काम आने वाला है, लेकिन अगर ली है तो उसको यहाँ पर, जैसा कि जो चैरिटेबल ट्रस्ट में काम करते हैं, इफ सपोज they are giving any donation which is in the nature of corpus, तो एप्लीकेशन ऑफ फंड नहीं मानी जाती। इसलिए इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिक क्लियर कट कर दिया है कि डोनेशन वही आप यहाँ लें जो कि आप कैपिटल या कॉर्पस के अलावा है, क्योंकि एप्लीकेशन उनकी नहीं मानी जाती। सिमिलरली ये अगर आपने कोई दी है कॉर्पस के लिए तो वो डिसअलाउ होगी अगर आपने उसको अपने P&L के अंदर एप्लीकेशन मांगा है। तो इसको प्लीज केयरफुली देख लें, ये दोनों चीजें आपको इम्पोर्टेंट है। अगर आपने यहीं पे नहीं दी तो आपको वो यहाँ पे नहीं देनी है, वो आपको डिसअलाउ होगी ही नहीं, क्योंकि आपने पिछली एप्लीकेशन में नहीं। तो ये आपका एक 2 अमेंडमेंट इससे रिलेटेड है। इसके बाद सर ITR 7 में इन्होंने शेड्यूल जो है कैपिटल गेन डिलीट कर दिया, क्योंकि इनकी ओपिनियन में 112 चैरिटेबल ट्रस्ट को अब नहीं लगेगा। इसलिए अब ये चेंजेस हैं सर 5 और 6 में, बहुत छोटे चेंजेस हैं, इंश्योरेंस बिजनेस से रिलेटेड है। इसके अंदर इनका लॉस भी कैरी फॉरवर्ड जो होगा वो सेपरेट होगा। इसी तरीके से अगर ऑफशोर में फॉरेन करेंसी के अंदर अगर कोई भी आपकी यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड से कोई इनकम है तो शेड्यूल अदर सोर्सेज में वो आपको अलग से दिखाना है। अब ये सर जो चेंज है ये पिछले साल इन 2 फॉर्म्स में रह गया। एक्चुअली लास्ट ईयर एक कंसेप्ट आया था कि अगर आपके पास एक से ज्यादा 2 हाउस प्रॉपर्टी, तो आप किसी स्पेसिफाइड कंडीशंस में अगर वो ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहे हैं, जैसे उसके अंदर शायद एग्जांपल में ये बताया है ड्यू टू ट्रांसफर पोस्टिंग, आपके पेरेंट्स यहाँ रह रहे हैं, आपके ने दूसरा घर वहां ले लिया, तो आपको दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गए, तो हम 2 घर आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड में 0 इनकम दे। तो इन्होंने यहाँ पे अब ये 5 और 6 में भी डाला। अब कहेंगे जी कंपनी में कैसे सेल्फ ऑक्यूपाइड? जी कंपनी भी तो ओन कर सकती है मान लीजिए, और कंपनी उसको अपनी ही प्रॉपर्टी यूज कर रही है, तो उसकी इनकम भी नहीं आएगी, नोशनल इनकम भी नहीं आएगी। अगर वो कंपनी हाउस प्रॉपर्टी के प्रोजेक्ट वाली है या वो मोर देन 4 जो है वो लेती है, तो नोशनल इनकम ना आए, तो इसलिए जो है अपने ही वहां पे प्रीमिसेस है, अपना ही गोडाउन है, तो उनको यहाँ पे देना है। ये इसलिए इन्होंने 5 और 6 में रह गया था, 1, 3, 2 और 4 में ये ऑलरेडी था। 54EE इसके अंदर गवर्नमेंट ने किसी प्रकार की कोई भी जो इन्वेस्टमेंट है वो नोटिफाई नहीं करी, इसलिए उसको इन्होंने यहाँ हटा। अब चेंजेस हैं 2, 3, 5, 6। सर लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में आपके जो शेड्यूल भरे जाएंगे, सॉरी शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में, तो वो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के दोनों के अलग कर। और इन्होंने यहाँ पे एक एक डिटेल IFSC, ISIN कोड, सेल प्राइस, ग्रैंड फादरिंग वाला पूरा कंसेप्ट यहाँ पे डाल दिया है। अगर आप इसको नहीं भरेंगे तो ये जो है आपको नहीं आएगा। 3 और 6 में सर ये कुछ नहीं है, यहाँ पे अब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए भी एक इन्होंने यहाँ पे डाल दिया है और कुछ नहीं।
any question here? कोई क्वेश्चन नहीं है. हेलो. There is no question in the chat box, sir. Okay, sir. Can I take 26 years? Yes, we Time need है proceed. या? 2 सेकंड के लिए आपकी वॉइस. हेलो. Gupta ji wants to say something. हाँ जी, बोलिए गुप्ता जी. हाँ, टाइम बहुत है सर. 7 बजे तक का टाइम है आपके पास. हाँ सर, चेंजेस तो इतने ही टाइम है. अप टू 7 o'clock. सर देखो क्या है कि कैशियर का कैश टैली है. सुनील जी नहीं वेलकम है. कर रहे हैं सर आपको. हाँ हाँ. सुनील जी वेलकम कर रहे हैं. थैंक यू. कोई क्वेरी हो तो पूछे, वरना मैं 26 years. अब आ गया मेरे स्क्रीन नहीं. स्क्रीन नहीं आया 26 आगे सर स्क्रीन भी आ रहा है, आवाज भी आ रही है आपकी. अच्छा ठीक स्क्रीन है. आया. चेंजेस इन रेस्पेक्ट ऑफ 26 years. नहीं, वो स्क्रीन पीपीटी वाला स्क्रीन नहीं आया सर आपका. अच्छा, एक मिनट सर. अब मैं इसको दोबारा फिर लेता हूँ सर. वो वाला आप, हाँ, दोबारा स्क्रीन शेयरिंग कर लीजिए. स्क्रीन शेयरिंग एक बार ऑफ करके ना दोबारा स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर लीजिए, फिर आ जाएगा. हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर. आगे सर. अब आ गया सर. नाउ इट इज विजिबल. ओके. तो अब ये सर एक छोटा सा एडिशनल टॉपिक है जिसको हम कवर कर लेते हैं फटाफट. फिर आपको जो कुछ होंगे, जनरल क्वेरी करनी हो या वो करनी हो, आप कर सकते हैं. सर एक ये चेंज आया है, जैसा कि कहा गया है कि फॉर्म 26AS, ये एक नया फॉर्म, इसको रिवाइज 26AS कह रहे हैं. ये पहले सर 203AA में होता था. अब इसको यहाँ पे कहते हैं ना, न्यू जो है विस्की ने ओल्ड बॉटल जो है इन्होंने कर दिया है. और इसका नया सेक्शन इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है, सेक्शन 285BB. बड़ी ही जबरदस्त चेंजेस करी है. और जब मैं इंस्टीट्यूट में था तो मैं हमेशा इनसे कहता था कि ये आप हमको सारी इंफॉर्मेशन जब आपके पास आ रही है तो आप क्यों नहीं हमको देते. होता क्या था सर, एसएससी हमें बताता नहीं था उसका कोई बैंक अकाउंट है. एसएससी हमें बताता नहीं था कोई प्रॉपर्टी खरीद ली या बेच दी. तो वो कुछ चीजें तो टीडीएस से पता लगने लग गई, लेकिन अपने बैंक अकाउंट में कुछ पैसे जमा करा दिए या उसने कोई और ऐसी चीज कर दी तो उसको इन्होंने अब हमारी बात को मान लिया. फिर ये क्या करते थे, 148 देते थे और हमको पता नहीं लगता था. तो हमको जब अपनी रिटर्न फाइल करेंगे उस टाइम हमें ये पता लगेगा कि हमारा एसएससी क्या क्या कर रहा है. और इसको इन्होंने नाम दिया है रिवाइज्ड एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट. और इसको रिवाइज फॉर्म 26AS के नाम से डिपार्टमेंट अब पब्लिश कर रहा है. और 1 जून 2020 से ये एप्लीकेबल है. और 11th अमेंडमेंट रूल्स 2020 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करा है. साहब ये जो करा है इसके अंदर कितनी तरीके की इंफॉर्मेशन आएगी, कौन देगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. पहले क्या होता था कि हमारा जो सीपीसी है, मेरे 26AS में कोई अमाउंट आता था वो उसका क्रेडिट नहीं देता, कहता है जी मेरे यहाँ नहीं है, विजिबल है. क्योंकि इंफॉर्मेशन कोलेट होती थी ओल्टास से, एनएसडीएल से, कहीं और से, तो वो बड़ी दिक्कत हुई. तो अब क्या है, इसकी एक सेंटर पॉइंट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है डीजीआईटी सिस्टम को या एनी पर्सन ऑथराइज बाय हिम. अब डीजीआईटी तो खुद बैठ के करेगा नहीं, तो वो अपने लोगों को ऑथराइज कर. अब क्या करेंगे, एक हर एसएससी का एक रजिस्टर्ड अकाउंट बनेगा, इररेस्पेक्टिव कि वो एसएससी ई फाइलिंग पे रजिस्टर्ड है या नहीं. और उसमें ये इंफॉर्मेशन डाली जाएगी. डायरेक्टर जनरल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो भी इंफॉर्मेशन उसके पोजीशन में आएगी, जो कि डिफाइंड है 114I में, उसको विद इन 3 month
जिस मंथ के एंड में उसको मिलेगी उसको एसएससी के रजिस्टर्ड अकाउंट में पोस्ट करना होगा। साहब ये कहीं नहीं बताया गया कि 3 महीने बाद वो पोस्ट नहीं कर पाएगा, और अगर उसने लेट पोस्ट करी तो उसको पेनल्टी लगेगी, और अगर उसने नहीं करी तो एसएससी के पास क्या रेमेडी है, ये अभी कोई चीज नहीं है। हाउएवर इट इज प्रज्यूम कि ये सब चीजें डायरेक्टर जनरल की। दूसरी यूनिक चीज, हर साल का 26 ईयर्स अब अलग बनेगा। अब ये फाइनेंशियल ईयर एंड असेसमेंट ईयर वाइज आपको मिलेगा। क्या क्या चीजें होंगी? टीसीएस टीडीएस कलेक्टेड, चलिए ये तो पहले भी होता था, नई चीज क्या है? स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एसएफटी, जो आपकी और लोग रिपोर्ट करेंगे वो यहाँ पे आपको आएगा। चलिए कोई बात नहीं। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, आप कोई पेमेंट करेंगे, सेल्फ, एडवांस टैक्स, कोई भी एडजस्टमेंट, सब यहाँ। कोई डिमांड होगा उस साल में, कोई रिफंड होगी उस साल की, वो वहां पे आएगी। चलिए सर आगे चलते हैं। पेंडिंग प्रोसीडिंग अगर होगी कोई, आपका 148 इशू हुआ, नोटिस नहीं मिला, पता नहीं है, माई अकाउंट में पड़ा है, ये 26 ईयर्स में भी आएगा। कितनी कंप्लीट होगी प्रोसीडिंग उस साल में आपकी जो उन्होंने करी, वो आपको पता लगेगी। अब आते हैं सर यहाँ पे जो डेंजरस, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी ऑफिसर, अथॉरिटी, बॉडी परफॉर्मिंग एनी फंक्शन अंडर एनी लॉ। तो साहब जीएसटी वालों की, कस्टम वालों की, और हो सकता है पुलिस वालों की, आपके कोई इंफॉर्मेशन सीबीआई, बेनामी, ब्लैक मनी, पीएमएलए, और हो सकता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी यहाँ दे दे, कोई भरोसा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा कोई इंफॉर्मेशन which may be deemed fit in the interest of revenue will be given in sub rule 1। अब हम 90A जो फॉरेन से आएंगी वो भी यहाँ 90 सेक्शन और 90A। अब साहब हम चलते हैं एक्चुअल फॉर्मेट जो आज की डेट में इन्होंने 114I में दिया। अब यहाँ पे मैं एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन देना चाहूंगा अपने मेंबरों को कि जब भी ये कभी प्रिंट करें तो इसको आपको अपने असिस्टेंट्स को नहीं हत्थे लगने देना। आपको सबसे पहले इसमें 2-3 चीजों को मास्क करना है, ब्लैक पेन से, किसी चीज से, व्हाइटिंग से, मार्कर से, ताकि वो हर आदमी को विजिबल ना हो। नंबर 1 डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि जितने भी आपके क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट, सब चीजें आपकी डेट ऑफ बर्थ से कनेक्टेड होते हैं। जैसे कभी डेट ऑफ बर्थ की बात करता हूं, मैं कभी भी ईयर नहीं लेता। हमने भी एक फॉर्म रिलीज करा हुआ है से, वहां हमने ईयर नहीं मांगा, क्योंकि ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेट ऑफ बर्थ तो फेसबुक पे भी सब गलत डालनी चाहिए, कभी ठीक नहीं डालनी चाहिए। जितने सोशल मीडिया है इस पे अभी कभी भी डेट ऑफ बर्थ ठीक नहीं डालनी चाहिए पूरी। यू मे गिव मंथ करेक्ट, डेट करेक्ट, बट ईयर कभी भी करेक्ट नहीं। मोबाइल नंबर, क्यों? आज की डेट में हर चीज कनेक्टेड है आपके मोबाइल से, सारे ओटीपी मोबाइल पे आते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल, दो चीजें मेरे पास पता लग जाए और मोबाइल आपका मैं क्लोन कर लूं, तो मैं एक दिन में आपको सब कुछ कर। ईमेल एड्रेस, बहुत सारे ओटीपी आज की डेट में ईमेल और मोबाइल दोनों पे आते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन जब आपको किसी और को देनी हो तो ये जरूरी नहीं है कि आप ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि आने वाले कल में जो भी बैंकर आपको लोन देगा या आपका कोई अकाउंट खोलेगा तो वो जरूर यहाँ पे देखना चाहेगा कि आप
कैसे असेसी हैं, आपकी क्या चीजें इनकम टैक्स के अंदर पेंडिंग हैं, और ये अगर आप देखें तो ये ईयर वाइज है। आपको हो सकता है वो यहाँ पे हर साल की इंफॉर्मेशन मांगे, 6 साल, 8 साल, 10 साल, ये सब। तो ये टोटल मेरी प्रेजेंटेशन है और मेरा इससे ज्यादा यहाँ कुछ नहीं है। आपके अब कोई और क्वेरीज हो या आपके कोई क्वेश्चन हो तो आई विल बी ग्लैड टू आंसर। अदरवाइज ऑर्गेनाइजर जो है they can take charge of it, or if they have their own query, they are most welcome. We are still 85 participants. Yes, sir. किसी को अनम्यूट करना है तो आप देख लीजिए, मैं चाहूँ मैं अपनी स्टॉप। थैंक यू सर, थैंक यू, आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, थैंक यू अग्रवाल साहब। लेकिन ना मेंबर्स पूछ रहे हैं ये पीपीटी कैसे मिलेगी? आपको भेज दिए सर मैंने, दोबारा भेज देता हूँ। हाँ, पीपीटी ठीक है, ठीक है, ऑलरेडी आ चुकी है, एक बार चेक कर लेना। ये हाँ, यूट्यूब तो चैनल ऐसा पर है डाल दी सर। पीपीटी। सर ऐसा ऐसा है है जी, फॉर दी, हाँ जी, गुप्ता जी देख so लेना। for the information of members, I would like to say that we will be sharing the PPT on our website. जो हमारी वेबसाइट है ना, उस पर इसका पीडीएफ डाल देंगे, तो वहां से सबको, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जी जी। अच्छा, ये वरुण जी पूछ रहे हैं सर, टैक्स ऑडिट असेसमेंट ईयर 2021 का स्कीमा आ गया क्या? टैक्स ऑडिट का तो आ गया है, लेकिन फॉर्म नहीं आए हैं। ऑलरेडी स्कीमा आ चुका है, ऑलरेडी ऑन है टैक्स ऑडिट, आप चाहें तो बना सकते हैं। और ये जेसीजी दोबारा लिखा है इन्होंने, इन माय व्यू 5% शुड बी ऑफ ग्रॉस सेल्स और टर्नओवर ओनली। ये कह रहे हैं कि 5% जो है ग्रॉस सेल्स या टर्नओवर का होना चाहिए इनके हिसाब से। मैंने पूरी आपको एग्जांपल से समझा दिया, प्रोविजन भी बता दिया। आप 44 ए भी पढ़ लो, उसका प्रोवाइजो पढ़ लो। अब ये तो इंस्टीट्यूट क्लैरिफाई करे या बोर्ड क्लैरिफाई करे, पर उन्होंने क्लियर कट फॉर्म के अंदर दिया हुआ है। सर मेरी और आपके ओपिनियन की क्या वैल्यू है? जो ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा है उसको पढ़ेंगे। हाँ, ये तो है सर, ठीक बात सर। हाँ जी। तो विद दिस वी थैंक सीए संजय अग्रवाल जी। Thank you, sir. Thank for you his very much. valuable time and very nice deliberation on the subject. और भी अगर कोई आपकी क्वेरी हो, he is always open for discussion on phone, on email, on WhatsApp. He is always available for members at large. और he has got a very good grip over the subject. और एक दो बातें हम और भी कहना चाहेंगे। एक तो कि हमारा जो YouTube चैनल है वो भी स्टार्ट हो गया है। तो संजय जी की जो रिकॉर्डिंग है ये हमने रिकॉर्ड कर लिया है और ये सेशन हम वहाँ YouTube चैनल पर भी डाल देंगे। कुछ मेंबर जो यहाँ नहीं देख पाए या थोड़ा कनेक्टिविटी का इशू था, तो वो लोग वहां पर भी उसको देख सकते हैं। उसके अलावा हमारा 25 तारीख को भी एक प्रोग्राम है ऑन जीएसटी। 2 टॉपिक हैं। पहला सेशन लेंगे ये अपना राजेंद्र अरोड़ा जी है, नव्य मल्होत्रा। पहला सेशन शायद राजेंद्र अरोड़ा जी का है। उनका है टॉपिक ये अपना 3 years ऑफ जीएसटी हिट्स एंड मिसेस। और उसके बाद नव्य मल्होत्रा जी का है। तो नव्य मल्होत्रा जी जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल फाइनलाइजिंग अकाउंट्स एंड जीएसटी एनुअल रिटर्न। तो ये टॉपिक रहने वाले हैं हमारे 25 तारीख को। आप सब लोग जुड़े रहें। अब थोड़ा सा देखिए टेक्निकल जब हम लोग आए हैं, अब थोड़ा तो कई बार थोड़े से हिकअप्स होते हैं, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। और फिर भी खैर काफी अच्छा चल रहा है। तो विद दिस वी थैंक एवरीबॉडी फॉर देयर वैल्यूएबल टाइम। वी स्पेशली थैंक सीए संजय अग्रवाल जी, द स्पीकर फॉर टुडेज सेशन, for sparing his valuable time and giving a wonderful deliberation on the subject. Thank you all. Thank you very much. We are formally ending the meeting right now. Okay. Thank you. Okay, sir.